So our end product will look like this after today's lab. हमारे इस पर्टिकुलर लैब में आपके एक दिए गए रीजन में दो अवेलेबिलिटी जोन्स में जो एक पूरा वीपीसी स्पैंड अप है, वीपीसी स्पैंड अप इन द रीजन, it is a region entity. So the VPC will be having a particular group of IPs available with it. Okay. And this virtual private cloud will be having some subnets, and these subnets here you can see in availability zone A, you have a public subnet which is having a NAT gateway just to route between the internet and private subnet. You require a NAT gateway. Okay. Then you have a private subnet. Then from outside this VPC is routed from outside internet with the help of internet gateway. And here you have a public subnet with a web server. Naturally, that web server is an instance of something, so it will be associated with a security group. And this is properly routable from outside. And there will be a private subnet which will be having some other secure resources. So these two private subnets, they will be having some secure resources. There will be a routing tables. In the routing tables, you have the entry of local, internet gateway, NAT gateway, etc. So naturally, if you have two availability zones, so you will be having two routing tables or routing tables. So let us come to, after going through this overview, let us come to the module itself and go to the lab. So we are inside module 5, lab 2. And as we have seen earlier also, we have to create lab. Then we have to work on the lab. Then we have to end the lab. Okay. And instruction we have here. So all the time, whenever we have to start a lab, we have to click on Start Lab. So what Start Lab does, actually, that was the question I asked in the previous class when we did previous lab. So the answer for that, little bit answer, because again, I want that you should explore, is whenever you go for Start Lab, it runs a CloudFormation JSON script or a YAML script. It can be a JSON script or it can be a YAML script. So it will run a CloudFormation script and it will create your infrastructure. So that is the beauty of infrastructure as a code script running. So it will create your lab. You can see that it is showing you AR in AWS CloudFormation West something something. So this is your stack of the CloudFormation, which is running. Okay, so somebody has written this CloudFormation YAML or JSON script. It takes both. It can be a YAML script or it can be a JSON script. So your lab is now ready. So we can close it. When the lab start has been done, you go to AWS button. So it will take you to your controlled console of your this user on which you have logged on.
So in the meantime, when it is taking you to that, we'll follow the instruction. So as we have seen in the diagram, the same diagram is shown here also. Same routing tables are shown here also. So we have to configure like this. So we have to start. Our objective is when our lab will be complete, we'll be having a VPC. We'll be having 4 subnets. Some security groups will be, in this case, only one security group because you have a web server, which is an entity, which is an instance. So only one instance is there, one resource which is running. So you require only one security group. Okay, you will be launching an EC2 instance inside this VPC in a public subnet. Why in a public subnet? Because it has to be routable, because it is a web server. So in normal duration, it requires 30 minutes. We may do it in before 30 minutes also. So firstly, we have to create a VPC. Okay. So in order to create a VPC, firstly, we have to go to our console, and from services, we have to type VPC. So we'll go to our console. Either we'll type here VPC, or if VPC entity recently we have used, so it will be available here. So it is one and the same. Either you type it here or you take it from here. So I am taking it from here. So now I will be on VPC console. In the meantime, it is taking me to the VPC console. I'll see the next. So what I have to do here, when I'll go to the VPC console, I have to go for launch VPC wizard. Okay, the second step. So you can see we are in our VPC console. And why we have to go for launch VPC wizard? Because it is very easy. Otherwise, manually we have to create subnets, etc. So it is a cumbersome process. So it's easy if you go through the VPC wizard. So we'll go for launch VPC wizard. So you will get this screen. Okay. Now what next it says? It says in the left navigation pane, click public and private subnet, which is the second option. I'll go for all options. Okay. अगर हमको विजार्ड में अकेले एक ही पब्लिक सबनेट बनाना है तो हम पहला ऑप्शन लेंगे. अगर हमें पब्लिक और प्राइवेट सबनेट बनाने हैं तो हम दूसरा ऑप्शन लेंगे. पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट और उसको ऑन प्रेमाइसेस कहीं दूसरी जगह पर वीपीएन एक्सेस देनी है, ये आपका कॉर्पोरेट डेटा सेंटर के साथ, तो हम तीसरा ऑप्शन लेंगे. अगर हमको डायरेक्ट कनेक्ट ऑप्शन लेना है तो चौथा लेंगे. तो हमको यहाँ पर दूसरा लेना है. दूसरे में हमको क्या मिलेगा, ये डायग्राम भी दिखा रहा है. अगर हम विजार्ड का सेकंड ऑप्शन लेंगे तो हमको यहाँ पर इंटरनेट से राउटिंग मिलेगी हमारे वीपीसी की, और हमको पब्लिक सबनेट में नाट गेटवे एक प्राइवेट सबनेट पब्लिक सबनेट में मिलेगा, और दूसरे प्राइवेट सबनेट से हम कनेक्टेड रहेंगे. तो ये रहेगा, ठीक है ना. तो हम सेकंड ऑप्शन ले लेंगे. इसके बाद वो कहता है सिलेक्ट को क्लिक करना है, तो विल गो टू क्लिक ऑन सिलेक्ट. सेकंड ले चुके हैं, ठीक है. अब यहां पर हमको वीपीसी का नाम देना है लैब वीपीसी, तो यहां से कॉपी कर लेंगे. So the name of VPC will be lab VPC, ठीक है. By default you are getting, जैसे कल की क्लास में हमने बात करी थी कि जो भी एलोकेटेड बंडल होता आईपी एड्रेस का, वो
वहां से मिलता है, ठीक है ना। तो ये हमने लैब वीपीसी ले लिया। अवेलेबिलिटी जोन, सिलेक्ट द फर्स्ट अवेलेबिलिटी जोन। फर्स्ट अवेलेबिलिटी जोन मतलब जो भी अवेलेबिलिटी जोन पहला मिलेगा यहां पर। तो पहला ये दे रहा है यूएस वेस्ट 2A, ये ध्यान भी रखना हमको। तो दिस इज अवर अवेलेबिलिटी जोन अंडर द रीजन यूएस वेस्ट। यूएस वेस्ट रीजन है और यूएस वेस्ट 2A अवेलेबिलिटी जोन है, ठीक है। तो ये स्टेप हो गया। पब्लिक सबनेट नेम विल बी पब्लिक सबनेट 1। तो इसको कॉपी कर लो। पब्लिक सबनेट नेम को यहां पेस्ट कर दो, पब्लिक सबनेट 1। अवेलेबिलिटी जोन, सिलेक्ट फर्स्ट अवेलेबिलिटी जोन सेम एज अबव, ठीक है ना। काय में यहां पे, और प्राइवेट सबनेट का नाम आप दे दो प्राइवेट सबनेट 1। तो ये तो हमारे विजार्ड का सेकंड ऑप्शन का बहुत बेसिक पार्ट हो गया। लेकिन वो कह रहा है यू कैन ऐड मोर सबनेट्स आफ्टर AWS क्रिएट्स द VPC। कहने का मतलब है कि जब ये VPC बन जाएगी, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, तो उस VPC में हम मैनुअली और पब्लिक या प्राइवेट सबनेट दे सकते हैं, है ना। वो ये वाली बात है। अब सिंपली बाकी हमें कुछ नहीं करना, हमारे पास दो सबनेट्स हैं, उनके वो नाम है और उनके वो अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। यूएस वेस्ट 2A, एक बार आप ध्यान से देख लें, यूएस वेस्ट 2A, यूएस वेस्ट 2A एक ही अवेलेबिलिटी जोन में होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्रिएट वीपीसी, क्रिएट वीपीसी, अच्छा यहाँ पे हमने ये रह गया, क्लिक ऑन द ब्लॉक, सिलेक्ट डिस्प्लेड आईपी एड्रेस। यहाँ यहाँ पे एक आईपी एड्रेस आएगा, है ना। तो जो आएगा उसको ले लो। तो ये एक इलास्टिक आईपी मिल गई, ठीक है ना। इसके बाद ये हमारा पॉइंट रह गया था, इसके बाद क्रिएट वीपीसी। ये याद रखना, अगर कोई भी पॉइंट हमारा रह जाता है तो वो एरर देगा नेचुरली। सो यू हैव सम इलास्टिक आईपी एड्रेस अवेलेबल टू यू। अगर जिसको नहीं पता इलास्टिक आईपी एड्रेस क्या होता, वो कल का एपिसोड देख ले, ठीक है ना। So now your VPC is being created and VPC तो क्रिएट हो ही रही है, उसके अंदर NAT गेटवे भी क्रिएट हो रहा है और इंटरनेट गेटवे भी क्रिएट हो रहा है और एक डिफॉल्ट रूटिंग टेबल उसमें बन रही है। तो जब तक ये क्रिएट हो रहा, हम आगे यहाँ पर स्टेप्स देखते हैं आगे करना क्या है। जब ये क्रिएट हो जाएगा, ओके करना है। ओके करने के बाद हमको इस तरह का सिनेरियो मिलेगा, जो कि हमारा आधा अधूरा सिनेरियो है, मतलब ऑलमोस्ट 40% वर्क इज डन। So we have to wait for some time, जब तक यहाँ समझ लेते हैं आगे करना क्या है। तो ये बाय डिफॉल्ट you will be having these routing table and this VPC is created and in this VPC एक अवेलेबिलिटी जोन में हमारे दो सबनेट बन गए और हम विजार्ड के थ्रू गए थे, इसलिए उसमें पब्लिक सबनेट में NAT गेटवे भी बन गया। NAT गेटवे का काम क्या है? प्राइवेट के लिए रूटिंग करना। मतलब अगर पब्लिक ट्रैफिक को थ्रू NAT गेटवे प्राइवेट में रूट करना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बनने के बाद, तो ये इतना हमारा बन गया है। अब हमको एडिशनल सबनेट्स बनाने हैं।
इसके बाद अब ये यहां आप ध्यान से देखिए, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं। आप सबनेट तो बनाएंगे, लेकिन यहां पे अवेलेबिलिटी जोन कौन सा होगा? सेकंड। अब जो भी एकमात्र स्टूडेंट है यहां पर, थोड़ा मुझको अनम्यूट करके बताए कि हम यहाँ सेकंड अवेलेबिलिटी जोन क्यों ले रहे हैं, बताएं थोड़ा, जब तक वो क्रिएट हो रहा है। एनी आइडिया दिव्या शर्मा? Sir, I am not sure, but if the server doesn't work in the one ability zone, then we No, can. no. It is not like that. It is like that. It is our target. It is given to us. You can see in this diagram now. This Yes. diagram is visible. Yes, sir. Yes, sir. Presently, we have created this much. Yes or Yes. no? Yes, sir. Now we have to create this. Yes, sir. So this has to be in a second availability zone Yes, in sir. the same VPC. Yes, sir. Yes. Now you got it. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, it is clear now. Okay. So Yes. US West वन और वट एवर क्या था, उसमें हमने ये बना दिया, ठीक है ना। अब ये 2 में बनाएंगे, ठीक है ना, तो इसलिए तो यहाँ वापस आ जाते हैं। हाँ, सो सेकंड अवेलेबिलिटी जोन लेंगे, तो यहाँ पर हम क्रिएट सबनेट करेंगे, एक पब्लिक सबनेट बनाएंगे और एक प्राइवेट सबनेट बनाएंगे। तो इसको, इस टास्क को एज इट इज यहाँ रखते हुए वापस चलते हैं। तो यहाँ पर सक्सेसफुली यू कैन से वीपीसी इज क्रिएटेड, ठीक है, एंड इट विल शो अस। So now we have this lab VPC. Okay, you can see this also. So this is your VPC. Okay, so I'll come back here. So now I'm back here. So now we have to go to the second part of this. Now we will go for create subnet option. So firstly we'll go for VPCs. Okay, and we have this lab VPC. Okay, and either I'll go here, नहीं यहाँ नहीं है, यहाँ सबनेट्स में जाएंगे, ठीक है ना। तो एक चीज आपने देखा होगा, जितने भी हमारे लैब्स हुए हैं उसमें अगर हम एक एंटिटी पे काम कर रहे हैं तो उससे एसोसिएटेड एंटिटी लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिखती है। तो सबनेट्स में आप क्लिक करोगे बिकॉज यू हैव टू क्रिएट सबनेट्स एंड यू गो फॉर क्रिएट सबनेट ऑप्शन। नाउ इन क्रिएट सबनेट ऑप्शन what I have to do, I have to create a public subnet. So the name of that will be public subnet to. So firstly I have to select the VPC. So that is my lab VPC which I have created. Subnet name will be public subnet to. Okay, and availability zone will be the second one, 2B, right? 2A already we have done, and how can we say that it is a public subnet? That we have to see. Next, CIDR block is this
If it is not there, we'll copy it. Sorry. It is 10.0.2 and 24. 10.0.2 10.0.2, this one, right? So this. So I have manually typed it. Okay. And so this will be, since it is 24, that means these 3 bits are network ID. Okay. So this much we have to do. We'll go for create subnet. So subnet will be created. So it is created. Again, I have to create one more subnet. So I'll again take lab VPC because it has to reside inside that. And it will be private subnet 2. So the name is private subnet 2. Presently, it is only the name. Availability zone, again, the second availability zone, 2B. So now our 2 subnets are in 2A and 2 subnets are in 2B. Okay. And here we have to take this 10.0.3. So I'll type it here and it will automatically take then 10.0.3/24. I'll choose. So now it is okay. And then we'll go for create. So presently minded, it is only the subnets, nothing public private. We have to make it public private so that we have to see. Okay. So now we have this. Now we have to go for routing tables. So from the left hand side, we have to choose route tables. Okay, so we'll have some default route tables. So we have to select a routing table which is saying main is equal to yes and VPC is equal to lab VPC. So main is equal to yes and VPC is equal to lab VPC. Now how can we understand that it is a lab VPC? Firstly, you have to see whether the name of VPC is this one. So if I see now it is visible. Okay. So the name is here. So main is equal to yes. So this first one. So in first one, main is equal to yes, and this one is the VPC. So I'll select this. When you select this, its property will come here and you can drag it like this. Okay. Now we have to go to the routes tab here. So this is the routes tab. So destination is set. Target is set. So in the name column for this route table, click on the pencil, then type private routing table.
Okay. So for this one, okay. So I'll click on this. Let us see what it says to us. This routing table is therefore being used to route traffic from private subnet. You will now add a name to routing table to make this easier to recognize in future. So we have a name column here. So let us see. We will go back and we'll select again this. And here we'll see the name columns. Where is the name column? This is the name column, right? So here you have to type, you have to paste private route table. So here you have given the name private route table. Then you have to come back here. So now you have this main is equal to yes and lab, and with this name, the name of this is here also you can write प्राइवेट रूट टेबल. यहां से आ गया, वो वहां शायद सेव नहीं हुआ था. सो नाउ यू हैव दिस. ओके, नाउ in the lower pane subnet association, so this is selected and here you have, ये हमको देखना जरूरी है कि हम जिस पे काम कर रहे हैं वो सिलेक्टेड होना चाहिए, नहीं तो कहीं और लिख जाएगा. तो हम इस पे काम कर रहे हैं तो ये सिलेक्टेड है, तो सबनेट एसोसिएशन में जाएंगे और विल गो फॉर एडिट सबनेट एसोसिएशन. So we'll click on edit subnet association and दोनों प्राइवेट सबनेट को जो है हम सिलेक्ट कर लेंगे. तो इसको थोड़ा सा बढ़ा दें so that we can see, sorry, so you can see private subnet 1, private subnet 2, इनको हमने सिलेक्ट कर लिया है. हाँ, तो ये अभी मैंने एक्सपेंड किया ना. अब ये सिलेक्ट करने के बाद इसको सेव कर देंगे. ठीक है. सो यू कैन सी सबनेट एसोसिएशन में ये एंट्रीज आ गई, पहले नहीं थी. ठीक है. अब हमको क्या करना है, मेन इज इक्वल टू नो, वीपीसी इज इक्वल टू लैब वीपीसी. तो इस मेन इज इक्वल टू नो ये वाला है और लैब वीपीसी इसको सिलेक्ट करना आप और इसको अनसिलेक्ट करना. तो अब ये केवल ये सिलेक्ट हो गया. यहां नेम में हमको लिखना है पब्लिक रूटिंग टेबल. यहां लिख देंगे पब्लिक रूट टेबल. ठीक है. अब यहां पर जो गेटवे है वो इंटरनेट गेटवे है, वहां पर क्या था, नेट गेटवे था. अब यहां भी हम सबनेट एसोसिएशन में जाएंगे और सबनेट एसोसिएशन में अभी यहां पर केवल एक सबनेट है. हम यहां पर सबनेट एसोसिएशन में एडिट सबनेट एसोसिएशन में जाकर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके पब्लिक सबनेट 1 ऑलरेडी है, इसमें पब्लिक सबनेट 2 सिलेक्ट कर लेंगे.
ठीक है, और सेव कर देंगे। तो आपने क्या किया, एक में आपने प्राइवेट सबनेट का एसोसिएशन बनाया, एक में पब्लिक का एसोसिएशन बनाया, सेव कर दिया। अब we have to create a VPC security group. Why we need a security group? Because हमको जो एक रूटिंग पैकेट्स आ रहे हैं वो उनका इनबाउंड रूल, मतलब वो अंदर कौन आए कौन ना आए वो लेना है। तो हमको यहां से में से सिक्योरिटी ग्रुप ढूंढना है। तो विल गो फॉर सिक्योरिटी ग्रुप्स और क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप्स। ठीक है, और सिक्योरिटी ग्रुप का नेम होगा वेब सिक्योरिटी ग्रुप। और इसका डिस्क्रिप्शन होगा इनेबल HTTP एक्सेस। यही चाहिए, थोड़ा 5 मिनट रुक के। और VPC विल बी लैब VPC, यहां से सिलेक्ट करेंगे ये लैब VPC। ठीक है, अब यहां पे रूल्स ऐड करेंगे, क्योंकि आप यहां देख रहे हैं इस सिक्योरिटी ग्रुप में कोई भी रूल्स नहीं है जो आप बना रहे हो अभी। तो यू हैव टू ऐड रूल्स। ऐड रूल्स में आप कौन सा लोगे, HTTP, यहां से HTTP ढूंढ लोगे, क्योंकि हमको वेब सर्वर को इनबाउंड ट्रैफिक देना है। एनीवेयर इसलिए दोगे क्योंकि HTTP आप जो है वो आप सब जगह देना चाहते हो, अंदर बाहर। डिस्क्रिप्शन आप इसको दे दो परमिट वेब रिक्वेस्ट। तो आपने केवल इनबाउंड रूल्स जो है वो HTTP पोर्ट के लिए खोले हैं। फिर आप ऐड रूल्स कर दोगे तो आपने ये पैकेट खोल दिए। अब ये सिक्योरिटी ग्रुप काम आएगा कब, जब मैं एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करूंगा। तो यू क्रिएट दिस सिक्योरिटी ग्रुप। ये एक्स्ट्रा बन रहा होगा तो इसको एक ही, अगर ऐसा ज्यादा आपको दिखे और एरर दे तो आपका एक तो रूल है ही, दूसरा रूल चाहिए नहीं था, तो यहाँ पे डिलीट करके क्रिएट कर दो। सो योर सिक्योरिटी ग्रुप विल बी क्रिएटेड। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप विल बी क्रिएटेड। नाउ वी हैव टू गो फॉर अ वेब सर्वर इंस्टेंस। तो हमको एक EC2 इंस्टेंस बनानी पड़ेगी। तो EC2 इंस्टेंस बनाने के लिए हमको सर्विसेज में जाके EC2 EC और EC2 पे क्लिक कर देंगे। So we'll get this EC2 को लॉन्च करना, मतलब नई इंस्टेंस बनाना है। तो आगे देख, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना दे, तो यहाँ लेफ्ट में इंस्टेंस पे जाना, तो आपको लॉन्च इंस्टेंस दिखाई दे जाएगा। सो वील क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। हमको एक इंस्टेंस EC2 की बनानी है, तो वो हमको मार्केट प्लेस से
अलग अलग फ्लेवर्स दिखाएगा। तो वी हैव टू गो फॉर फर्स्ट, यू विल सिलेक्ट एन AMI। तो इसमें हमको लेना है Amazon Linux 2 टॉप से। So we will take Amazon Linux 2, this one, already selected by default. ठीक है ना? So we'll click on this. So after clicking on this, you can see आपको एक फ्री टायर मोड में T2 माइक्रो दिखा रहा है। अब ये जो T2 माइक्रो या T2 नैनो, T2 स्मॉल, T2 मीडियम, T2 लार्ज, ये सारे कंप्यूट कैपेसिटी होती है। मतलब आपका जो कंप्यूट कैपेसिटी है वो क्या है, वो होती है। और साइड में आपको दिख रहा है मेमोरी कितनी है बाय डिफॉल्ट, और जिस समय ये इंस्टेंस क्रिएट होती है उसके साथ स्टोरेज बाय डिफॉल्ट क्या ऐड हो रही है, तो स्टोरेज ऐड हो रही है EBS, यानी कि इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। ठीक है, तो यहां हम देखेंगे वो कह रहा है T2 माइक्रो जो ऑलरेडी है वो लेना है और कॉन्फ़िगर वाले ऑप्शन पे जाना है। तो कॉन्फ़िगर के ऑप्शन में चले गए। कॉन्फ़िगर में नेटवर्क लेना है लैब VPC, ये पूरा ले जाओ। तो नेटवर्क ऑप्शन में जाएंगे, नेटवर्क ऑप्शन, नेटवर्क, हाँ नेटवर्क ये है। यहां से आपको सिलेक्ट करना है लैब VPC, क्योंकि आपका ये कोई भी आपकी इंस्टेंस होती, कोई भी रिसोर्स होते, वो किसी ना किसी VPC के अंदर ही रहते हैं। तो ये आपका लैब VPC जो आपने क्रिएट की उसके अंदर बनेगा, पब्लिक सबनेट 2 में आएगा जो आपने बनाया था। तो यहां से आप सिलेक्ट करोगे पब्लिक सबनेट 2। ठीक है, ऑटो असाइन पब्लिक IP इनेबल, इनेबल एडवांस डिटेल। अब यहां ये ध्यान से सुनना, सुन रहे हैं दिव्या शर्मा? हेलो, सुन रहे हैं ध्यान से? यस सर। हेलो, ओके। अब ये ध्यान से देखना है, जो स्क्रिप्ट दिख रही है बेसिकली ये जो आपका इंस्टेंस क्रिएट होगी तो ये बाय डिफॉल्ट ये स्क्रिप्ट चलेगी। तो इससे आपका अपाचे वेब सर्वर जो है बनकर कॉन्फ़िगर प्रॉपरली हो जाएगा और सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, है ना? तो हमको ये स्क्रिप्ट यहां से कॉपी करनी है और यहां पर नीचे जो ये टेक्स्ट बॉक्स है यहां पर इसको, क्या हो गया, वैसे तो सही पेस्ट हुआ था, फिर भी मैं फिर से पेस्ट करता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैंने गलत बटन दबा दिया। तो मैं फिर से पेस्ट करूंगा, पेस्ट, हाँ तो सही हुआ। सो दिस इज अ स्क्रिप्ट, शेल स्क्रिप्ट विच विल एट फर्स्ट इंस्टेंस जैसी बनेगी तो ये रन हो जाएगा। तो हमारा साथ ही साथ इंस्टेंस बनने के साथ ही साथ, लाइनक्स इंस्टॉल होने के साथ ही साथ
ये स्क्रिप्ट चल जाएगी तो एक वेब सर्वर, अपाचे वेब सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। नाउ आई विल गो फॉर ऐड स्टोरेज। उसमें कुछ नहीं करना है। ऐड टैग, टैग में एक टैग ऐड कर देंगे हम। तो ऐड स्टोरेज में गए, बाय डिफॉल्ट वो आपको 8 GB साइज का SSD का इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज दे रहा है, तो उसमें हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, टैग में एक टैग ऐड कर देंगे। टैग में नेम होगा नेम, यहाँ पे नेम, और वैल्यू होगी, मतलब हम एक की उसको दे रहे हैं जिससे हम ढूंढ सकें इस रिसोर्स को। टैगिंग ठीक है। सो इसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप, तो हमको सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करना है जो हमने बनाया था, ठीक है ना। तो विल गो फॉर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, यहां भी लिखा होगा एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। और जो अभी हमने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था, कौन सा, वेब सिक्योरिटी ग्रुप, ये आपने बनाया था। ये पहले का कहीं बना होगा इससे मतलब नहीं है, जो आपने अभी वेब सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था जिसमें इनेबल HTTP एक्सेस था, उसको सिलेक्ट करना है। तो यू कैन सी इस सिक्योरिटी ग्रुप पे आपने इसको राउटिंग दी है HTTP पोर्ट की, ठीक है। रिव्यू एंड लॉन्च, रिव्यू एंड लॉन्च, you will not be able to connect to this instance as EMI port 22 to be open have to be accessed, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके कर देंगे, है ना। एक ये वो बोल भी रहा है एक वार्निंग आएगी तो आपको कंटिन्यू करना है वार्निंग के लिए, क्योंकि वो क्या है कि आपने इसको एडमिनिस्टर करने के लिए पोर्ट नहीं रखा है। आप समझ रहे हैं ये वार्निंग क्यों आई थी, दिव्या शर्मा? क्योंकि आपने सिक्योरिटी ग्रुप में केवल HTTP पोर्ट ओपन किया है, आपने बाहर से SSL करने के लिए पोर्ट ओपन नहीं किया है, ठीक है ना। यस और नो? यस सर। अगर आपको करना है तो बाद में आप ऐड कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ओके आप बाहर से SSH के थ्रू आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन हमें नहीं करना कंट्रोल, इसलिए हमने केवल इतना रखा सिक्योरिटी रीजन से। ओके सर। अब यहां पर लॉन्च पे क्लिक करना है। अब लॉन्च करने के लिए, जब लॉन्च करने जाओगे तो वो आपसे की पेयर की बात करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है वो देखना है। यू हैव टू गो फॉर सिलेक्ट एंड एग्जिस्टिंग की पेयर। हाँ, तो वो ऑलरेडी है। फिर आप लॉन्च इंस्टेंस करोगे, फिर व्यू इंस्टेंस करोगे। तो आई एक्नॉलेज को क्लिक कर दोगे, लॉन्च इंस्टेंस, इट विल लॉन्च, ठीक है। देन व्यू इंस्टेंस, सो यू कैन व्यू दिस इंस्टेंस हियर। यहां स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी देर में, जब तक ये स्टार्ट होता है आगे चलें, ठीक है ना। अब जब ये इंस्टेंस स्टार्ट हो जाएगा तो यहां हम इसको सिलेक्ट करेंगे और हमको इस इंस्टेंस के एंड पॉइंट्स यहां पे मिलेंगे, ठीक है, पब्लिक IP वगैरह। तो अब ये कह रहा है जब ये मिल जाएगा तो हमको कॉपी करना है पब्लिक IP, कॉपी द पब्लिक DNS, ठीक है ना। और
न्यू ब्राउजर टैब में उस पब्लिक डीएनएस को कॉपी करना है। ये है पब्लिक डीएनएस, ये एड्रेस नहीं, पब्लिक डीएनएस। तो इसको कॉपी करना है और न्यू टैब में इसको यहां पेस्ट करना है। लेट अस कम बैक हियर जब तक वो खुलेगा। सो अगेन विल सी कॉपी पब्लिक डीएनएस। तो हमको इस तरह का दिखेगा यहाँ पे, काली वाली पी अच्छी वाली मंगाएंगे, बस थोड़ा सा बचा। ठीक है, सो लेट अस सी देयर इज समथिंग। हाँ अब आ रहा होगा। So we will wait for it till it will be loaded here. क्या हो रहा है? फिर से देखते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सिलेक्टेड, कॉपी, so we will see this. When we will see this, our lab will be complete. हाँ एक मिनट बस, हो ही गया ये, थोड़ा सा नहीं, बस अभी होने वाला। लेट अस सी इट्स पब्लिक एड्रेस, कॉपी करके देखते हैं राउटेबल है कि नहीं। देयर में भी सम प्रॉब्लम इन, अब इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है अगर ये ऐसा कर रहा है। सो वी हैव टू सी वेदर ये तो सही है, अवेलेबिलिटी जोन यूएस वेस्ट 2B है, ठीक है ना। आपकी ये भी रन कर रहा है, क्या बोल रहा है, राउटिंग एसोसिएशन भी प्रॉपर हैं। एक बार वीपीसी देखेंगे। सो ये पूरे स्टेप्स हैं, आप अपने एंड पे करके देखना, सो यू विल गेट दिस। ठीक है, अभी यहाँ हो सकता है कि इट विल टेक सम टाइम, लोड करने में कई बार टाइम लेता है। सो दिस इज फुल लैब। इसके बाद यू हैव टू एंड लैब।
एंड यू हैव टू क्लोज दिस, एंड लैब कर देंगे तो ये रिसोर्स पूरा चला जाएगा, एंड यू हैव टू क्लोज दिस. So idea here is we have to make this. इसको अगर मैं आपको रिकैप करूं just for a seconds, तो let the diagram comes in. It is taking some time. थोड़ा सिस्टम, हाँ ये डायग्राम आ गया. तो यहां पर मैं रिकैप ये कर दूं कि आपने एक वीपीसी क्रिएट किया है ना. वो कैसे क्रिएट किया? विजार्ड के थ्रू, और विजार्ड के सेकंड ऑप्शन से क्रिएट किया. तो वीपीसी में आपने एक पब्लिक प्राइवेट सबनेट बनाया. तो विजार्ड ने जब ये बनाया तो ऑटोमेटिकली उसने नेट गेटवे रख दिया, ठीक है ना. तो इतना उसने बना के दिया. फिर आपने मैनुअली दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में 2 सबनेट बनाए, पब्लिक प्राइवेट. इनका एसोसिएशन किया, इनका एसोसिएशन किया, और फिर उसमें यहां पर एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करके उसको बाहर से राउटेबल किया HTTP के साथ, और एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करके उसको इस सिक्योरिटी ग्रुप के साथ ऐड किया. तो इससे आपका ये काम हो गया कि ये बाहर से राउटेबल है, क्योंकि रूटिंग टेबल में इंटरनेट गेटवे है आपके, और दूसरी रूटिंग टेबल में प्राइवेट में नेट गेटवे है. तो इस तरह से ये काम हुआ, ठीक है ना. So this was today's lecture. So firstly, I will be stop